Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the Walaikum assalam. sweet looking kids of ICB especially. Even if there is any other student from any other institute watching our videos, he or she is also welcome to this class. So students, I hope you are doing well. Today, as we discussed yesterday, today we are going to talk about sentence structure. When this word or this term is mentioned in front of you, what do you understand that sentence structure? What comes to your mind? पहले आपसे थोड़ा मैं फीडबैक लूंगा. अगर कोई आपके सामने ये टर्म ये इस्तेलाह यूज करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो आपके जहन में क्या आता है? पहले हाथ रेज करेंगे, कोई अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा, और जिससे मैं कहूंगा वो मुझे अपना फीडबैक देंगे बिफोर वी शेयर द स्क्रीन. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? आपके जहन में क्या आता है अगर कोई आपसे कहे सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे? क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आता है? एनीवन? नौफिल, आपके जहन में क्या आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर का लफ्ज सुनकर? नो आइडिया. नो आइडिया आता है इनके जहन में. चले, नो प्रॉब्लम. किसी और के जहन में अगर कोई चीज है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और हम साद हमीद इज रेजिंग हिज हैंड. यस साद हमीद. सर, जिस चीज से सेंटेंस बनता है, जिनके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, बन नहीं सकता. वेरी गुड. साद हमीद इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट. वो बता रहे हैं आपको कि सेंटेंस स्ट्रक्चर की जब बात होती है तो हम यकीनन जिन अज्जा पे, जिन इंग्रेडिएंट्स पे, whatever parts are there which are necessary for making a simple sentence. So when we listen to this term, at once this point of view comes to our mind that sentence structure would be letting us know or teaching us how a sentence is formed, how a sentence is built. तो बिल्कुल सही कहा साद हमीद ने. साद हमीद, यू कैन लोअर योर हैंड और आई कैन ऑल्सो फ्रॉम हियर. तो हम आज पढ़ेंगे सेंटेंस के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. वैसे आपको थोड़े बहुत सेंटेंसेस बनाने आते हैं, यू आर गुड एट मेकिंग सेंटेंसेस, बट दिस इज सम बेसिक नॉलेज अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर. कभी कभार एग्जामिनेशंस में ये चीजें पूछी जाती हैं. दिस इज कॉल्ड द नॉलेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. एक बनाना होता है, वो आप अप्लाई कर रहे होते हैं, सेंटेंस बना रहे होते हैं, बट दिस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट आर दी you must be aware of the basic parts of a sentence. So get ready, I'm going to share my screen with you and we are going to learn about sentence structure. So this is about sentence structure and we are going to play. Can you guys see my screen? Is it visible to you all? Anyone can answer? Yes, sir. Yes, sir. Good. So Yes. as you can see on the screen, it is about sentence structure. Let's move on. What is a sentence? When we say we are going to learn sentence structure, the first question that pops up into your mind, that question is, what is a sentence? The answer to this question is not only this small, but this can be a bit bigger. You would see sentence is basically a group of words. Some words set together, combined together, and then this is not the only definition for sentence. There is something more to it. This group of words is basically combination of a subject and a predicate. Whatever words we are talking about, if they are combined in such a way that we can separate some part as the subject of a sentence and some part as the predicate of a sentence, then it can be a sentence. One more thing to make sentence clear, this group of words which is in the combination of subject and predicate,
if it gives complete meaning, then it would be called a sentence. सेंटेंस अगर बनाना है, सेंटेंस की बेसिक डेफिनेशन समझनी है, तो ये तीन चीजें समझनी है कि सेंटेंस बुनियादी तौर पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, चंद अल्फाज मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं कोई अल्फाज उठा के हम एक साथ इकट्ठे लिख ले तो वो सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस बनने के लिए पहले तो इसके अंदर उन अल्फाज के अंदर कॉम्बिनेशन होती है कि कुछ अल्फाज सब्जेक्ट वाला काम कर रहे होते हैं, कुछ अल्फाज प्रेडिकेट वाला काम कर रहे थे। ये दोनों टर्म्स भी मैं आगे जाके डिफाइन करूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। और फिर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला कॉम्बिनेशन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इफ इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, अगर ये मुकम्मल मीनिंग फराहम कर रहा है, इससे कोई सेंस बन रहा है, इससे कोई चीज कम्युनिकेट हो रही है, तो ही जाके इसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब इन तीनों सर जी मेरे भाई हो सर प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? बेटा ये मैं आगे इसी में डिफाइन किया है, आगे बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, हर चीज का आंसर मिलेगा। इवन अगर कोई चीज कंफ्यूजन हुई, आपको आंसर इसका नहीं मिला, तो डेफिनेटली मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, और आज नोट कर ले, अगर हमें ये मेरा जो चीजें लिखी हुई हैं कंप्लीट नहीं हुई, 40 मिनट गुजर गए, तो 5 से 10 मिनट बाद हम दोबारा इसको ऐसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, 15-20 मिनट और चला लेंगे ताकि आज की चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो सेंटेंस के लिए बुनियादी तौर पर ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, आपके इल्म में होनी चाहिए, आपको समझ लेनी चाहिए। कोई भी आपका छोटा भाई छोटी क्लास में आया, आपसे कहता है भाई सेंटेंस क्या होता है, तो आपको पता हो कि सेंटेंस बुनियादी तौर पर अल्फाज का मजमुआ होता है, और उसके अंदर फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रेडिकेट का काम कर रहे होते हैं, और ये दोनों मिलके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके कोई कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं, मुकम्मल सेंस दे रहे होते हैं, तब उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस, कैसे, जिस तरह ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये सेंटेंस किसी सूरत में आपके सामने मौजूद है, फहद मरवत हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं। वी आर स्टूडेंट्स, यहां आप देखें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऐसा ही है। एक और मिसाल इसके सामने हम पेश करेंगे, दे सिंग सॉन्ग्स। एक और मिसाल, द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क। डू यू लव एनिमल्स। वॉज ही रीडिंग, रीडिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, यहां पर ए आना चाहिए, इसको बाद में मैं ठीक कर लूंगा। वॉज ही रीडिंग अ बुक, या अभी कर लेते हैं इसको ठीक, क्या ख्याल है, इसको अभी से ठीक करते हैं ताकि कहीं ये मसला ना बन जाए। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, some groups of words I have presented in front of you as an example. As the first thing to make a sentence, we need groups of words. These groups of words are there. और जो दूसरी चीज हमने कही थी कि they must be a combination of subject and predicate. All those groups of words like this. इसमें जो रेड पार्ट है वही सेंटेंसेस हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। रेड पार्ट मैंने रखा हुआ है सब्जेक्ट के लिए, और ब्लू पार्ट होगा इसका प्रेडिकेट। मैं इसकी डेफिनेशन भी बाद में बताता हूं। वी आर स्टूडेंट्स में वी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दे और आर स्टूडेंट्स प्रेडिकेट का। दे सिंग सॉन्ग्स में दे सब्जेक्ट है, सिंग सॉन्ग्स प्रेडिकेट है। ऑल बॉयज हैव डन देयर होमवर्क में ऑल बॉयज सब्जेक्ट है, हैव डन देयर होमवर्क प्रेडिकेट। डू यू लव एनिमल्स में यू सब्जेक्ट है, डू वाला पार्ट भी और सम लव एनिमल्स भी, ये भी प्रेडिकेट है। वॉज हर ब्रदर रीडिंग अ बुक, इसमें हर ब्रदर सब्जेक्ट है और रीडिंग अ बुक इसका, और वॉज भी प्रेडिकेट है। तीसरी चीज हमने कही थी कि ये कंप्लीट मीनिंग देते हों। कंप्लीट मीनिंग कब होती है, जब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों शामिल हो। कंप्लीट मीनिंग तब होती है, कैसे, मिसाल के तौर पर हमने कहा कि वी उसमें सब्जेक्ट था और आर स्टूडेंट्स था। अगर हम सिर्फ वी कहें या वी हटा दें, सिर्फ कहें आर स्टूडेंट्स, आर स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ वर्ड तो है,
लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। आर स्टूडेंट्स, तलबा है। कौन है भाई तलबा? क्या कर रहे हैं तलबा? तो यहाँ सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट, जब ये दोनों मिलते हैं तो मीनिंग कंप्लीट होती है। इसकी डेफिनेशन जब आपको मैं बताऊंगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। सब्जेक्ट दे सिंग सॉन्ग, अगर कोई सिर्फ दे कहे तो मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट मीनिंग थोड़ी सी है। दे का पता चलता है किसी लोगों की तरफ इशारा करके कोई चीज बात की जा रही कि वो लोग, बट व्हाट आर दे डूइंग वी डोंट नो जब तक प्रेडिकेट वाला हिस्सा ना कहा जाए। सिंग सॉन्ग। ऑल बॉयज, सिर्फ ऑल बॉयज कहा जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड तो बन गया, लेकिन ऑल बॉयज क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, कुछ नहीं पता जब तक प्रेडिकेट वाला हिस्सा नहीं बोला जाता। ऑल बॉयज हैव डन देयर होमवर्क। इवन अगर सिर्फ हम इतना कह दें हैव डन देयर होमवर्क, हु हैज डन देयर होमवर्क, सवाल पैदा होता है, मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। इसी तरह इन तमाम सेंटेंसेस में भी अगर सिर्फ हर ब्रदर कहा जाए या वाज हर ब्रदर कहा जाए, इतना लफ्ज ग्रुप ऑफ वर्ड तो बन गया, लेकिन ये प्रेडिकेट इसमें नहीं है तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। अब आते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तरफ कि ये चीज क्या है, जो हम्माद का सवाल भी था कि हमने कहा जी सेंटेंस के लिए लाजमी है कि सर? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जी जी सर हम्माद। बेसिकली ये जो प्रेडिकेट होता है इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं? नहीं, आगे मैं बढ़ता हूं, ऑब्जेक्ट भी डिफाइन होगा इसमें। हमने पढ़ा कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, फिर उसके हमने पढ़ा दो पार्ट्स लाजमी होने चाहिए उस सेंटेंस में। एक सब्जेक्ट का पार्ट होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। ये बुनियादी तौर पर दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस को। अगर सबसे पहले इब्तदाई तौर पर अगर सेंटेंस को समझना है तो हम उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। अब क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बुनियादी तौर पर पार्ट ऑफ सेंटेंस है, एक सेंटेंस का एक हिस्सा है, जुमले का एक हिस्सा है। उसका फंक्शन, उसका काम क्या है? नॉमिनेट्स और मेंशंस अ पर्सन और अ थिंग। सब्जेक्ट किसी शख्स या किसी चीज का नाम लिख के बता रहा होता है या उसका तज़किरा कर रहा होता है। सब्जेक्ट में हमेशा किसी चीज या किसी शख्स का जिक्र होगा। वो एक वर्ड में भी हो सकता है, एक से ज्यादा अल्फाज में भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। यहां तक बात समझ आ रही है सब्जेक्ट की? मिसाल के तौर पर द चेयर इज ओल्ड, इसमें जो रेड पार्ट है, बेटा स्क्रीन पे कोई टच नहीं करेगा। व्हाइल आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, आप जो स्क्रीन पे शेयर करते हैं यहां अपीयर होती हैं चीजें। द चेयर इज ओल्ड, इसमें रेड पार्ट चेयर है, देखें इसको हमने सब्जेक्ट कहा, इसमें किसी चीज का तज़किरा आया, चेयर का। फिर सम गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहां भी किसी चीज का तज़किरा आया, सम गोट्स। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर था, दो अल्फाज पर मुश्तमिल था, दूसरे में भी दो अल्फाज तो है लेकिन प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंगुलर हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लूरल हो। जो बताने वाला जिसकी बात कर रहा होता है वो डिपेंड करता है कि सिंगुलर की बात की जा रही है, प्लूरल की बात की जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर है ऑल बॉयज सिंग सॉन्ग, इसमें भी एक से ज्यादा वर्ड्स पर सब्जेक्ट मुश्तमिल है और प्लूरल फॉर्म भी है। यहां देखें यू वर रेडी फॉर द क्लास, इसमें एक वर्ड पे मुश्तमिल है और यू ऐसा लफ्ज है जो एक शख्स को पुकारने के लिए भी यूज होता है और एक से ज्यादा लोगों को कॉल करने के लिए, पुकारने के लिए भी यूज हो सकता है। अगर मैं यहां कहूं यू मतलब आप सारे वर रेडी फॉर द क्लास, तब भी ये एप्लीकेबल है। एक स्टूडेंट को कहूं, नौफल को, यू वर रेडी फॉर द क्लास, तो भी ये सिंगुलर प्लूरल के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। फिर ये देखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए मैंने कहा लाजमी नहीं है एक या दो अल्फाज पे मुश्तमिल हो, इसमें रेड पार्ट पूरा सब्जेक्ट है। द नेम ऑफ आवर नेशनल पोएट इज अल्लामा इकबाल। अब ये सारा रेड पार्ट 1 2 3 4 5 6 अल्फाज पे मुश्तमिल है और इट इज सब्जेक्ट। किसी शख्स का तज़किरा हो रहा है, द नेम ऑफ आवर नेशनल पोएट, हमारे कौमी शायर का नाम। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई हैं कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। यस सर।
वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक दफा ये सर हो गया, जिसको नहीं समझ आई हो फिर वो नो सर कहे, सारे ये सर ना कहे। अब हम बढ़ते हैं प्रेडिकेट की तरफ। व्हाट इज प्रेडिकेट? बुनियादी तौर पर प्रेडिकेट इज पार्ट सर ये ऑफ अ पिछले साल सेंटेंस। भी था, जी बेटा, ये पिछले साल भी था। तो एक तरह से रिवीजन ही समझ लें इब्तिदा में। चलो ठीक है। अच्छा जी, प्रेडिकेट बुनियादी तौर पर पार्ट ऑफ सेंटेंस है। मैं एक मिनट देख लूं, हमारे भाई साहब आए तो कोई नहीं, हाशिम साहब नहीं है, उनका नेट का इशू होगा। अच्छा जी, प्रेडिकेट हमने कहा बुनियादी तौर पर ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। अच्छा, प्रेडिकेट के लिए भी लाजमी नहीं है कि बहुत सारे अल्फाज हों, कम से कम एक लफ्ज और ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके प्रेडिकेट में होते हैं। हाँ जी, अब इसका काम क्या होता है? सब्जेक्ट का काम हमने पढ़ा था कि वो नॉमिनेट करता है, तज़किरा करता है किसी शख्स किसी चीज का। ये क्या करता है प्रेडिकेट? इट टेल्स और इट इन्फॉर्म्स अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट में जिस शख्स या जिस चीज का तज़किरा आया होता है उसके बारे में कुछ टेल करता है, बताता है, या इन्फॉर्म करता है, या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन या वो बताना क्या होता है? उस सब्जेक्ट की स्टेट या एक्शन के बारे में होता है। किस चीज के बारे में होता है? उसकी स्टेट या एक्शन के बारे में हमें कोई चीज बताई जा रही होती है। नेक्स्ट क्या है? कुछ एग्जाम्पल। हमने पहले सेंटेंस में द चेयर इज ओल्ड पढ़ा था, और यहां हमें पढ़ने को मिला द चेयर इज ओल्ड प्रेडिकेट पार्ट है, और यहां पर दो अल्फाज हैं। मैंने पहले ही कहा प्रेडिकेट के लिए कम से कम एक लफ्ज, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके वो प्रेडिकेट में होते हैं। Some goats are grazing in the field। अब यहां पर जो रेड पार्ट है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये प्रेडिकेट है, और यहां देखिए कितने सारे अल्फाज हैं। फिर सम बॉयज सिंग सॉन्ग, यहां दो अल्फाज पे मुश्तमिल प्रेडिकेट है। यू वर रेडी फॉर द क्लास, और यहां पर इज अल्लामा इकबाल, ये प्रेडिकेट है। अच्छा, यहां आपने एक चीज मेंशन करनी है, नोट करनी है, बल्कि एक मिनट में आपको जहां से वर्ब शुरू हो जाता है जुमले में, वहां से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। ये चीज आपकी समझ आई कि नहीं आई? जहां से सेंटेंस में आप देखें, सर रिपीट प्लीज, रिपीट। जी 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 जी, जब हमने कहा प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा होता है, सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से शुरू होती है? जहां से सेंटेंस में वर्ब आ जाता है, वो चाहे कोई इज एम आर वाला वर्ब हो, या कोई सिंग वाला, या कोई एक्शन वर्ड हो। तो जहां से इसमें वर्ब शुरू होता है, वहां से ये प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। यहां तक चीज समझ आई होगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट में जिस शख्स या चीज का जिक्र होता है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है कि जी वो क्या करता है, वो क्या खाता है, वो क्या है, ये सारी चीजें। इनको भी मजीद मैंने और क्लैरिफाई किया है आगे, क्योंकि प्रेडिकेट के भी फिर हम मुख्तलिफ पार्ट्स बनाते हैं। पहले तो हमने सेंटेंस के दो पार्ट्स बनाए, सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम किया। अब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट अपनी जगह मौजूद है, अब प्रेडिकेट में एक से ज्यादा पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कैसे? हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रेडिकेट कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल हो सकता है।
कितने? कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट होते हैं। मतलब पहला पार्ट उसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब प्रेडिकेट का एक हिस्सा होता है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। वर्ब हैपेंस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अगर वर्ब नहीं होगा तो प्रेडिकेट नहीं बनेगा। और वर्ब कम से कम एक लफ्ज से मुश्तमिल हो सकता है, एक से ज्यादा अल्फाज पे भी मुश्तमिल होता है। तो मैंने कहा कम से कम एक वर्ड भी होगा तो वो वर्ब होगा। दूसरा पार्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जो हमसे हमाद पूछ रहे थे। और तीसरा इसका पार्ट क्या होता है? कंप्लीमेंट। इस कंप्लीमेंट की स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा। ये COMPLIMENT नहीं है। क्या है ये? एक मिनट, हम वापस जाएंगे। एक हमारे पास वर्ड लिखा जाता है COMPLIMENT। उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई कमेंट, कोई तबसरा। ये निकला है वर्ड कंप्लीट से, तो ये कंप्लीमेंट है, मतलब मुकम्मल करने वाला इंफॉर्मेशन को। तो हम इनको भी सीखेंगे कि वर्ब का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है और कंप्लीमेंट का काम क्या होता है। तो हम यहां तक पहुंचे हैं। पहले हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर सेंटेंस के दो पार्ट्स का हमें पता चला, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट का हमें पता चला कि उसका क्या फंक्शन होता है, वो किसी शख्स या किसी चीज का तस्करा करता है। और फिर हमें प्रेडिकेट का पता चला कि वो उस सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। और फिर अब पता चला कि प्रेडिकेट भी खुद 3 हिस्सों पे मुश्तमिल हो सकता है। कम से कम उसमें वर्ब तो लाजमी होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कभी कभार मिसिंग भी होते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि वर्ब क्या होता है। जुमले का वो हिस्सा जिसे हम वर्ब कहते हैं, सेंटेंस का वो पार्ट जिसे हम वर्ब कहते हैं। जो अच्छा जी, मेरे पास 10 मिनट का टाइम आ गया है। अगर 10 मिनट में खत्म हुआ और तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक 5 या 10 मिनट बाद आप फिर ज्वाइन करेंगे, मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। गुड। कितनी देर बाद? अभी ओके 10 सर। मिनट है तकरीबन। अगर अचानक से बंद हो गई क्लास तो आप समझ जाइएगा कि टाइम खत्म हो गया है, और उसके 5 से 10 मिनट बाद आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 5 से 10 मिनट का ये वक्फा लेगा। ओके सर। अच्छा जी, द फंक्शन ऑफ वर्ब आपको बताया जा रहा है। वर्ब का काम क्या होता है प्रेडिकेट में? वर्ब इन्फॉर्म्स अबाउट सब्जेक्ट इन 4 वे। वर्ब का काम होता है, जो हम कहते हैं ना प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो बुनियादी तौर पर ये वर्ब ही होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये 4 तरह की इंफॉर्मेशन फराहम कर सकता है। लाइक एक इंफॉर्मेशन तो ये हो सकती है व्हाट सब्जेक्ट इज, कि सब्जेक्ट क्या है। जो कहते हैं अगर ये चीज बता रहा है तो मतलब वो सब्जेक्ट की स्टेट या कंडीशन बता रहा है, या उर्दू में से क्या कहेंगे, हालत बता रहा है, सब्जेक्ट क्या है। इनकी मिसालें भी आगे मैं बताऊंगा। दूसरी इंफॉर्मेशन देता है व्हाट सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या अमल कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट का एक्शन बताया जा रहा है, परफॉर्म बाय सब्जेक्ट इटसेल्फ। जो सब्जेक्ट खुद परफॉर्म कर रहा हो तब हम कहते हैं व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग। फिर इसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, एक मिनट, कोई पार्टिसिपेंट तो नहीं आया है? नहीं आया, ठीक है। तीसरी इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डन टू सब्जेक्ट। कभी कभार सब्जेक्ट खुद परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज परफॉर्म हो रही होती है। जिस तरह हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, वो आगे में एग्जांपल भी दी हुई है। एक्शन डन टू सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, पैसिव होता है। यहाँ क्या है मेरे पास, चैट आई हुई है 3, कोई मुझसे बात करना चाह रहा है। हम्माद, हम्माद तुम, व्हाट्स प्रॉब्लम हम्माद? ये कौन मैसेज कर रहा है? सर जी मुझे खुद नहीं समझ आ रही है कौन है बिलाल हसन। नहीं, बिलाल हसन खुद, ये हमाद है हमारे स्टूडेंट। हमाद पता नहीं सर जी। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, चौथी इंफॉर्मेशन जो हमें देता है वर्ब, वो होता है व्हाट सब्जेक्ट हैज।
सब्जेक्ट के पास चाहे, यहाँ सब्जेक्ट की गलती से मैं स्पेलिंग कर, पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के पास, एक मिनट में स्पेलिंग ठीक कर दूं, जहां गलती से ठीक हो गया जी। ये 4 एग्जाम्पल आपको नजर भी आ गए, दोबारा भी नजर आएंगे। अब जिस तरह हमने कहा था 4 इंफॉर्मेशन दे रहा होता है वर्ब, 4 तरह की इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट इज, उसकी स्टेट कंडीशन। इसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखी, योर गेस्ट आर हैप्पी, योर गेस्ट होना चाहिए, ये भी मिस्टेक होगी। देखिए जल्दी जल्दी लिखने की वजह से कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, डोंट वरी, वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमन इज टू अर्थ, ह्यूमन गलती का पुतला होता है, ठीक है जी। सर योर गेस्ट्स आर हैप्पी, इसमें वर्ब है आर जो रेड पार्ट में लिखा हुआ है, वो सिर्फ सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज बाकी सब तक क्लियर आ रही है जी? यस सर, बहुत ज्यादा क्लियर आ रही है। बेटा आपकी तरफ हो सकता है इशू हो सिग्नल्स का। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा इसमें क्या बताया कि आपके जो गेस्ट्स हैं वो खुश हैं, स्टेट क्या है, खुश हैं। ये सिर्फ स्टेट, ये सिर्फ हालत, ये कंडीशन बताएगी, इसमें कोई अमल नहीं हुआ। एक और सेंटेंस, द वॉचमैन किल्ड द थीफ, इसमें वर्ब है किल्ड। अब ये किल का जो अमल है, सब्जेक्ट जो वॉचमैन है उसने खुद परफॉर्म किया है, एक्शन बाय सब्जेक्ट या एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसमें ये सेकंड जो हमने पढ़ा था, ये वाला सब्जेक्ट डज जी। सर वर्ब इसमें यही कहते हैं ना कि कोई एक्शन वर्ब करना या कोई किसी चीज का एक्शन करना, वो चीज आ गई है इसमें। बिल्कुल, ये असल में हम पढ़ रहे हैं वर्ब जो सेंटेंस का हिस्सा है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब एज अ वर्ड पढ़ेंगे तब बताएंगे कि वर्ब की किस्में कितनी होती हैं, एक्शन वर्ब भी होते हैं, नॉन एक्शन वर्ब भी होते हैं, मॉडल वर्ब भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम वर्ब एज पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस में वर्ब क्या परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक हो गया हमारा। अगला सेंटेंस, तीसरा फंक्शन, द वेजिटेबल्स वर वॉश्ड, इसमें सब्जेक्ट है वेजिटेबल्स, लेकिन वो खुद अपने आप को वॉश नहीं कर रही हैं। देयर वुड बी समवन हु इज डूइंग दिस एक्शन टू द वेजिटेबल्स, कोई और शख्स है जो वेजिटेबल्स को धो रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये वेजिटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन वेजिटेबल्स खुद से कोई अमल नहीं कर रही हैं, कोई और उन पे ये अमल कर रहा है। ये चौथा था, तीसरा फंक्शन था जो ग्रीन में मैंने लिखा है, व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, और चौथा फंक्शन, आवर अंकल हैज अ न्यू होंडा, हमारे अंकल के पास एक नई होंडा गाड़ी है, अमीर अंकल हैं। तो यहाँ हैज वाला जो वर्ब है ये सिर्फ पोजीशन बता रहा है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, ना ये स्टेट बता रहा है, ना ये एक्शन का कोई सब्जेक्ट का कोई एक्शन बता रहा है, ना ये सब्जेक्ट पर होने वाला कोई एक्शन बता रहा है। सिंपली इट इज टेलिंग अस व्हाट द सब्जेक्ट पोजेस, व्हाट द सब्जेक्ट हैज, कि सब्जेक्ट के पास क्या है। यहां तक चीज समझ आ गई वर्ब की? यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, फिर हमने पढ़ा था सेंटेंस प्रेडिकेट का दूसरा हिस्सा ऑब्जेक्ट भी होता है, ये भी पढ़ा था। यस सर। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेनली कम्स आफ्टर एक्शन वर्ब्स। ये जो भी हम आज पूछ रहे थे, वर्ब्स की एक किस्म होती है एक्शन वर्ब्स जो किसी अमल की निशानदेही कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट अमूमन उनके बाद आता है। जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, अमूमन जो अमल किया जा रहा होता है उसका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने, या जो चीज जिस शख्स को जिक्र किया गया है, जिस चीज का सेंटेंस में सब्जेक्ट में वो जो अमल कर रहा है उसका असर किस चीज पर जा रहा है। इसकी मिसालें भी आगे। ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट एंड whom, अगर वर्ब से व्हाट का सवाल किया जाए और whom का सवाल किया जाए
तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन ये सवाल वर्ब से करना होता है। मैं बताता हूं कैसे। दे लव पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान रेड में लिखा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। और अगर आप लव वाले वर्ब से सवाल करें, लव व्हाट, दे लव व्हाट, वो किससे मोहब्बत करते हैं, तो जवाब क्या मिला, पाकिस्तान। तो ये है इसका ऑब्जेक्ट और लव एक्शन वर्ब है। She punished him, हाँ जी, तो हम ऑब्जेक्ट ही सीख रहे थे। दे लव पाकिस्तान में हमने जब वर्ब लव से व्हाट का सवाल किया, दे लव व्हाट, तो हमें आंसर मिला पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इसका ऑब्जेक्ट था। और शी पनिश्ड हिम में जब हमने वर्ब पनिश्ड से सवाल किया, पनिश्ड whom, तो जवाब मिला हिम, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसमें। When object answers what, the answer is the direct object पाकिस्तान। जब अमूमन वर्ब का जवाब वर्ब से सवाल what वाला किया जाता है, तो अमूमन किसी चीज या किसी जगह या किसी शख्स का नाम हमें मिलता है, शख्स का नहीं, जगह का ही मिलता है, तो वो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स, ऑन द अदर हैंड, व्हेन ऑब्जेक्ट आंसर्स whom, जब whom का आंसर दे रहा होता है ऑब्जेक्ट, तो उसके आंसर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अमूमन उसमें अमूमन कोई शख्स या कोई जानदार चीज होती है, जानवर परिंदा भी हो सकता है। तो जो व्हाट का आंसर दे रहा होता है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा होता है, तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और whom का आंसर जो वर्ड कर रहा होता है वो इनएनिमेट भी हो सकती है, अक्सर औकात एनिमेट होती है, तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसकी मिसालें देख लें। अच्छा, एक चीज और यहाँ एक्सप्लेन की गई है, इट इज पॉसिबल दैट बोथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, he sent me a letter, अब इसमें और इस सेंटेंस में I shall tell my students some new stories। अगर मैं वर्ब sent से पहले सवाल करूं, sent what, क्या भेजा गया, a letter, that is the direct object। sent whom, किसको भेजा गया, me, तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर दूसरे सेंटेंस में टेल, वर्ब है, टेल से व्हाट का सवाल करें, टेल व्हाट, क्या बताई जाएगी, सम न्यू स्टोरीज, कुछ नई कहानियां बच्चों को बताई जाएंगी, तो ये इसका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर पूछा जाए टेल whom, किसको सुनाई जाएंगी, तो जवाब आता है माय स्टूडेंट्स, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह इस सेंटेंस में व्हाट का जवाब दे रहे हैं, इन दोनों में, एक में अ लेटर है व्हाट का जवाब और दूसरे में सम न्यू स्टोरीज, तो ये हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। और दोनों सेंटेंसेस में whom का जवाब मी और माय स्टूडेंट्स है, तो ये दोनों हुए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। गुड बॉयज, आगे बढ़ते हैं। हमने तीसरी चीज पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ही था। यस सर। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स पढ़े थे, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मेनली कम्स आफ्टर अ नॉन एक्शन वर्ब। जी बेटा बोले। सर इधर कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग फिर से गलत है। नहीं, ये आई वाला नहीं, ई वाला ही है, मैंने वहां एक्सप्लेन किया था। जी बेटा, वो कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLIMENT, जिसको हम कहते हैं कोई कमेंट, कोई तबसरा, ये कंप्लीट से निकला है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट है। सेंटेंस का पार्ट ये होता है, ये और वो आई वाला कॉम्प्लीमेंट अलग होता है। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट मेनली कम्स आफ्टर नॉन एक्शन वर्ब्स। अमूमन तो नॉन एक्शन वर्ब्स के बाद जो सेंटेंस का हिस्सा होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट एक्शन वर्ब्स के बाद नहीं आएगा, उनके बाद भी आ सकता है, बल्कि आता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन क्या होता है, काम क्या करता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, यहाँ स्पेलिंग गलत है, कॉम्प्लीमेंट इस जगह पर यहाँ आई ऑन आनी चाहिए। 1 मिनट, ये मुझे ठीक कर लेने दें आप।
ये थोड़ी सी जल्दी जल्दी की स्पेलिंग की वजह से। Complement tells about the state or condition of subject when used after non-action verb. अच्छा जी, जब हम कहते हैं ना वर्ब स्टेट कंडीशन बताता है, तो वर्ब सिर्फ बताता है कि सब्जेक्ट कुछ है। असल जो वर्ड होता है वो कॉम्प्लीमेंट में होता है, जो स्टेट जाहिर कर रहा होता है, हैप्पी, रिच या अपसेट, ये चीजें बता रहा होता है मिसाल के तौर पर। अच्छा, इट इज पॉसिबल कॉम्प्लीमेंट कैन बी यूज आफ्टर एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद भी मैंने इस तरह थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होता है। आगे देखें इसकी एग्जांपल। अच्छा, when used after या along with action verbs, complement can tell about the manner, time, place or purpose of an action. जब ये नॉन एक्शन वर्ब्स के साथ यूज होता है तब तो वो सब्जेक्ट की कोई स्टेट या कंडीशन बता रहा होता है, लेकिन जब एक्शन वर्ब्स के साथ यूज होता है तो वहां इसका फंक्शन अलग होता है। वो उस एक्शन वर्ब का या मैनर बता रहा होता है, या उसका टाइम बता रहा होता है, या उसकी प्लेस या पर्पस या रीजन या कॉज और काफी सारी चीजें हैं ये बताता है। मिसाल के तौर पर पहला सेंटेंस, ही वॉज रिच, इसमें रिच कॉम्प्लीमेंट है और जो वॉज नॉन एक्शन वर्ब है उसके बाद यूज हुआ है। वॉज सिर्फ ये बता रहा है कि ही वॉज, वो था। क्या था? रिच। रिच असल वर्ड है जो उस कंडीशन या स्टेट का कह लें कि एग्जैक्ट वर्ड बता रहा है, क्योंकि ही वॉज हैप्पी भी आ सकता है, ही वॉज सैड भी आ सकता है। तो असल वर्ड कंप्लीमेंट में अमूमन या नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है जो बता रहा होता है स्टेट और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट। एक और सेंटेंस, दे लुक्ड हैप्पी, यहां पर भी लुक की स्पेलिंग ठीक हो गया? यही कहना चाह रहे थे हम आप? ना सर, इसमें रिच और ये जो आखिर में आ रहा है रिच और हैप्पी, ये दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट है ना? कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल। दे लुक्ड हैप्पी, इसमें लुक्ड एक्शन वर्ब नहीं है, ये भी नॉन एक्शन या लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का फंक्शन हम जब वर्ब के फंक्शंस पढ़ेंगे एज पार्ट ऑफ स्पीच तब बताऊंगा। तो यहाँ लुक्ड हैप्पी में हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है और लुक्ड यहाँ नॉन एक्शन वर्ब है। ये सिर्फ और सिर्फ लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ या उसके एडजेक्टिव के साथ। यहां पर एक्शन वर्ब है सॉल्व, यू सॉल्व द सम क्विकली। यहां पर एक्शन वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आया है क्विकली, और सॉल्व जो वर्ब है एक्शन वर्ब, उसका मैनर बता रहा है कि सम कैसे सॉल्व हुआ, क्विकली, जल्दी से सॉल्व हो गया। एक और मिसाल, he is waiting for you angrily, वो गुस्से में आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ वेटिंग एक्शन वर्ब है और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। एक बार फिर यहाँ मैनर ही बता रहा है। मैंने कोई टाइम प्लेस वाला भी देना था लेकिन शायद जल्दबाजी में रह गया है। यहाँ भी एक्शन वर्ब का अंदाज या मैनर बताया जा रहा है कि वो अमल किस तरीके से या कैसे हो रहा है। यहाँ तक चीजें समझ आई हैं आप लोगों को? यस सर। यस सर, एक सेकंड जी बोले। सर चले आगे। अगर आगे मैं चला भी जाता हूं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी वीडियो रात में अपलोड हो जाती है, आप दोबारा बार बार देख सकते हैं। बल्कि आपने वीडियो को लाइक भी करना है और अगर YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच तो कर दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चले आपको चीजें समझ आई कि नहीं आई? कोई होमवर्क थोड़ा सा ना दिया जाए आप लोगों को? सर दे दे, मैं तो सर दे दे। ठीक है, यस सर, मैंने भी लिखा। एक मिनट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है मेरे पास। एक मिनट आगे चले गए। ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं 10। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपके साथ एक और फाइल शेयर करूंगा, आप वहां से देख लेंगे।
10 जुमले हैं जो मैंने उठाए हैं, जो 2 चैप्टर्स हमने रिसेंटली पढ़े हैं, एक द पेशेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा 8 कल्चरल फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड। उनमें से 5 एक लेसन से उठाए हैं, 5 दूसरे से उठाए हैं। ये सेंटेंसेस में आपने करना क्या है, इन सेंटेंसेस में आपने 2 टेबल्स बनाने हैं अपने पास। एक तो बनाया हुआ मैं शेयर भी करूंगा। एक में आपने इस तरह करना है, सेंटेंस 1 का सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट लिखना है, हर सेंटेंस का नंबर देकर इस तरह करते जाएंगे। और बेटा साइलेंस प्लीज, बीच में नहीं बोलेंगे। अगर कुछ बोलना है तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, ताकि जब स्क्रीन शेयर खत्म हो जाए, आपकी तस्वीरें मेरे सामने हो तो पता चले इसका क्या इशू है। 1 मिनट हम वापस चलेंगे। अच्छा जी, दूसरे टेबल में आप क्या करेंगे, जो इस टेबल में आपने प्रेडिकेट बनाया हुआ था उसको उठाएंगे, पार्ट 1 के प्रेडिकेट को। उसमें अगर वर्ब है तो उसका वर्ब वाला पार्ट यहां लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट लिखेंगे, नहीं होगा तो यहां आप छोटा सा डैश डाल देंगे। और अगर सॉरी, यहाँ प्रेडिकेट मैंने क्यों लिखा है, यहां होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। मैं आपके साथ एक और पेज शेयर करता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि क्या करना है आपने। ये हमारा हो गया है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये खत्म हो गया। होमवर्क वाली मैं फाइल आपको दिखाता हूं, सब्र करें, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। ये देखें, सेंटेंसेस आपके पास इस तरह से, ये फाइल 10 सेंटेंसेस यही पड़े हुए सेम सेंटेंसेस हैं और इसमें ये चीज लिखी हुई है। यहाँ असल में मैंने लिखना था कॉम्प्लीमेंट, यहाँ मैं गलती से ये लिख बैठा हूँ। ठीक हो गया जी। ये मैं आपके साथ पेज शेयर करूंगा, इसमें चैट में जाकर फाइल की सूरत में आप अपने पास डाउनलोड कर लें। चाहें तो इस पे लिखें, चाहें तो अलग पेज पे हैंड रिटन लिखें नंबर ले देकर, लेकिन थोड़ा सा लाइनें लगाकर टेबल जरूर बना लीजिएगा ताकि मुझे पता चले अलग अलग काम और नीट काम हुआ है। थैंक यू वेरी मच देन, अल्लाह हाफिज।